آپ اگر بورن اگین ہونے سے پہلے بھی موٹے تھے تو بورن اگین ہونے کے بعد بھی موٹے، اگر بورن اگین ہونے سے پہلے کالے تھے تو بورن اگین ہونے کے بعد بھی کالے، اگر گورے تھے تو گورے ہی رہیں گے، اگر چھوٹے تھے تو چھوٹے رہیں گے، جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، کوئی چینج نہیں آئے گا۔ چینج کہاں آئے گا؟ چینج آپ کی اسپرٹ میں آتا ہے اور آپ کو مسیح یسوع کی روح مل جاتی ہے، اور اب وہ روح بہت بےتاب ہوتی ہے کہ وہ آپ کے تھرو اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ میں یہ بات ہر سرمن میں بتا چکی ہوں کہ جس طرح شیطان کو اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے ایک بدن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح خدا کو بھی اپنا آپ پروف کرنے کے لیے ایک بدن کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں کل رات کو پھر مزے کی بات ہے کہ میں کل رات کو پھر چیپٹر 1 ورس 9 اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی 11 سے اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلے اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھے اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ آمین۔ یہاں پہ رکھے، کہتا ہے اگر ایک درخت کو آپ اس کے، خدا نے پہلے اپنے ورڈ سے درخت بنا دی، کہتا ہے لیکن ان درختوں نے ملٹی پلائی ہونا ہے اور اپنے جیسے اور درخت بنانے، اور درخت بنانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ بیج کی۔ غور کیجیے، وہ ان درختوں میں، ان کے پھلوں میں بیج ڈال رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ بیج کیا کریں گے؟ وہ آگے ان پلانٹس کو ملٹی پلائی کر دیں گے۔ میں کل آپ کو ایک بات سمجھا چکی ہوں، لوکا اس کے 8 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام بیج ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کا کلام کیا ہے؟ بیج ہے۔ اگر پودے کا بیج پودا بناتا ہے تو خدا کے کلام کا بیج جو کہ خود خدا ہے وہ آپ کو کیا بناتا ہے؟ پودے کا بیج پودا اگائے گا، خدا کے کلام کا بیج آپ کے اندر کون سی پاور کو ٹرانسفر کرتا ہے، یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ سو یہاں پر آئی ہوپ آپ کو میری ریولیشن سمجھ آئی ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت بڑی ریولیشن کی بات کری۔ کیا کہتا ہے کہ جو پودا ہے وہ اپنے اپنے بیج کو بنا لے تاکہ وہی جو بیج ہیں آگے جا کے ملٹی پلائی ہو جائے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، اب پڑھو 12 سے پڑھو۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھے، اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہے اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ خدا نے ان کو ان کی جنس کے مطابق، ان کی ٹائپ کے مطابق، ان کی کائنڈ کے مطابق بنایا۔ اور اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں کہ خدا ایک اور بات کر رہے ہیں یہاں پر 20 آیت سے پڑھنا شروع کرو۔ 20 آیت۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندے کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، 5واں دن ہوا۔ ایک سیکنڈ، خدا نے پہلے دن، جو خدا نے تیسرے دن جب پودے بنائے، وہ پودے آج بھی اپنے بیج کے مطابق، اپنے پرپس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ پھر خدا نے 5ویں دن جانور بنائے اور ان کو کہا پھلو اور بڑھو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانور پل بھی رہے ہیں، بڑھ بھی رہے ہیں، ملٹی پلائی بھی ہو رہے ہیں، اور اپنے ہی کائنڈ کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی شیر ایک ہاتھی کے بچے کو پیدا کر دے، ایسا نہیں ہو رہا۔ شیر ایک شیر کے بچے کو ہی پیدا کر رہا ہے، ہاتھی ایک ہاتھی کے بچے کو پیدا کر رہا ہے، کتا ایک کتے کے بچے کو پیدا کر رہا ہے، اور انسان ایک انسان کے بچے کو پیدا کر رہا ہے۔ ورس پر جائیں گے، دیکھو خدا نے پودے پودوں کی کائنڈ کے مطابق بنائے، جانور جانوروں کی کائنڈ کے مطابق بنائے، لیکن خدا انسان کس کی کائنڈ پر بنا رہا ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔
जी वर्स नंबर 24 पढ़ो। और खुदा ने कहा कि जमीन जानदारों को उनके जिन्स के मुआफिक छुपाए और रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवर उनके जिन्स के मुआफिक पैदा करे, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चौपाइयों को उनकी जिन्स के मुआफिक और जमीन के रेंगने वाले जानदारों को उनके जिन्स के मुआफिक बनाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। कि जानवर भी जानवरों के काइंड के मुताबिक ग्रो कर रहे हैं। देख लिया अब आपने, प्लांट्स के मुताबिक, जानवर जानवरों के मुताबिक, और ऐसा अभी तक होता आ रहा है। नेक्स्ट वर्स में क्या लिखा है 26 में, अब यहाँ पर खुदा की फेवरेट और खुदा की ग्रेटेस्ट क्रिएशन की बात होने वाली है, जिसका खुदा इंसान से मैच नहीं कर रहा। मैं आपको यहाँ पे एक साइंस का कॉन्सेप्ट भी डेट कर रही हूँ कि साइंस कह रही है कि पहले इंसान बंदर था और वो रेवोल्यूशनाइज्ड होके वो एवोल्यूशन की मदद से चेंज होते होते वो एक इंसान बन गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक जानवर की छवि पे नहीं बने। आपका जो पैटर्न है वो कहाँ से आ रहा है, आपकी जो शख्सियत है वो कहाँ से आ रही है, वो हम पढ़ते हैं। जी 26 साल। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं, और वो ये समंदर देखिए, की मछलियों, आप किसकी मानद बने? खुदा की मानद। खुदा ने हर किसी को किसी की मानद बनाया, लेकिन आपको उसने अपनी मानद बनाया। उसने ये नहीं कहा कि खुदा ने पौधों को अपनी मानद बनाया, खुदा ने जानवरों को अपनी मानद बनाया, खुदा ने सूरज और सितारों को अपनी मानद बनाया। नो, सब चीजों को उसने कहा और वो बन गई, लेकिन इंसान के लिए वो अपनी सूरत को अडॉप्ट करे, वो अपना आप दे रहे, वो जैसा है वो आपको वैसा बना रहा है। जो अख्तियार उसके पास था वो अख्तियार आपको दे रहा। अगर खुदा को वर्शिपर्स चाहिए होते तो फरिश्ते बहुत ज्यादा थे। यहाँ पर खुदा ने आदम को ये नहीं कहा कि तू अब आ गए तो तूने मेरी हमदो सताइश करते रहना है। उसने आदम को एक पर्पस दे दिया कि जो मैंने तुझे चीजें बनाई हैं तूने उनकी टेक केयर करनी है, तूने इनको बढ़ाना है, और जिस चीज को तू जैसे कहेगा वो चीज वैसे ही तेरे लिए काम करेगी। और मत्ती 18:18 में हमें हमारा वो इख्तियार वापस मिलता है जो शैतान छीन लेता है। मत्ती 18:18 में हमें दोबारा कहा जाता है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खोला जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाए। हम कौन? बाप, बेटे और रूह कुदस। और फिर कहते हैं और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो रीते हैं इख्तियार रखें। खुदा ने आपको खुदा की जितनी क्रिएशन थी उन पर इख्तियार बख्श दिया। आपको पता है एक दफा बनी इसराइल की जंग हो रही थी, इसराइल कौम की जंग हो रही है बाइबल में, और क्या होता है कि जो मेन प्रॉफिट है जब वो दुआ करता है तो वो सूरज को भी रोक लेता है एक दिन के लिए। और आपको पता है आज भी हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है कि जिंदगी जब से सूरज बना ना वब से एक दिन मिसिंग है। जब से आप ये गूगल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, जब से दुनिया बनी है वब से उस दुनिया में जो टाइम ड्यूरेशन और जो जितने दिन आने चाहिए और जितने एक्सपेंशन होनी चाहिए उसमें से कुछ घंटे मिसिंग है जब तक सूरज नहीं डूबा था। बाइबल रिकॉर्ड करती है कि शाम भी हो गई थी तो उस प्रॉफिट के कहने पर, यशवा के कहने पर सूरज नहीं डूबा था। आप देखें यशवा ने सूरज को भी कंट्रोल कर लिया। तो कभी हम भी कहते हैं यीशु मसीह के नाम से बारिश थम जाए, थम जाती है, हम देखते हैं। लेकिन यशवा ने कहा यह सूरज वक्त तक चमकता रहेगा जब तक हम जंग नहीं जीत जाते, और सूरज उसका ताबे हुआ। सूरज भी बाइबल में अगर कोई बात रिकॉर्ड हुई है तो वो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुई कि आप उसको मजाक समझो,
बाइबल में बहुत इसलिए रिकॉर्ड हुई है कि खुदा ने अगर उनके लिए काम किया तो आपके लिए भी ये काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के कहने पे सूरज ने रुक गया। और आज तक अगर आप गूगल करें तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन खुद भी सेंड कर सकती हूँ, लेकिन कोई काम अगर सिचुएशन आपके मुताबिक काम नहीं करी तो आप अभी तक सिचुएशन और टाइम और उम्र और हालात के मातहत हो, आप उनकी बॉन्डेज में हो। लेकिन कलाम कहता है कि तू इन सब चीजों पर इख्तियार रखता है। अगर आपको पता है कि आप खुदा में कौन है तो आप उम्र की दराजी से आसूदा होंगे। आप वो काम देखेंगे जो किसी की जिंदगी में काम नहीं हुए। इस वर्ल्ड में ईमान रखना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर चीज का सब्स्टिट्यूट और सोल्यूशन निकल आया। इस वर्ल्ड में ईमान रखना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैं। मैंने आपको कहा ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप की दुखी स्टेटस, ये टिकटॉक, ये स्नैप वीडियोस, ये क्या है? ये आपको थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट लगती है, लेकिन ये एनिमी की तरफ से आपके लिए डिसेप्शन के सीड्स हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बस ये तहिया कर लें, आज से आप ये वादा करें कि जितना मैं वर्ड लेके जा रहा हूँ उतना ही मैं वर्ड अपने अंदर लेके जाऊंगा, तो क्या होगा? आप देखना, शायद अब 15 मिनट से ज्यादा वर्ल्ड को अपने अंदर ना लेके जा सको, क्योंकि आप वर्ड सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए अपने अंदर लेके जाते हैं। अगर आप वर्ड 15 से 20 मिनट अपने अंदर लेके जा रहे हैं तो वर्ल्ड भी तो 15 से 20 मिनट लेके जाए ना। लेकिन आप सारा दिन वर्ल्ड अपने अंदर लेके जा रहे हैं। आप अपनी रूह को ग़िज़ा देने के बजाय आप अपने जिस्म को ग़िज़ा दिए जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? आपके मौजों में डिले हो रहे हैं, आपके कामों में डिले हो रहे हैं। आपको पता है यशवा को खुदा ने कॉलिंग ट्रांसफर करने से पहले क्या कहा? यशवा को जब खुदा इस्तेमाल करता है तो यशवा को बड़ा डर है, क्योंकि लोग मूसा को तो जानते हैं, क्योंकि मूसा के थ्रू बहरे कुलजुम 2 हिस्से हुआ। लोग मूसा को जानते हैं क्योंकि मूसा की लाठी सांप से दोबारा लाठी और लाठी से सांप भी बनी। लोग मूसा को जानते हैं क्योंकि 10 आयतों में जैसा मूसा ने कहा वैसा हुआ। लेकिन लोग यशवा को नहीं जानते। और खुदा कहता है कि यशवा को खुदा कहता है कि अगर तू अपनी जिंदगी में सक्सेस देखना चाहता है, कामयाबी देखना चाहता है, तो तुझे मेरे वर्ड पर ध्यान देना चाहिए। तेरा ध्यान मेरे वर्ड पे रहना चाहिए। हम ये वर्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम फेथ में जंप करेंगे। ये भी सारी फेथ की बातें मेरे साथ निकालें। यशवा की किताब, उसका पहला बाब। जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके, उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। कह रहे जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिकेगा, जैसे मैंने मूसा को वो जगह दी, मैं तुम्हें भी वो जगह दे दूंगा। यार अगर खुदा ये बात करे तो यकीनन ये कोई नॉनसेंस बात नहीं है। इस बात का मतलब है कि जहां कहीं यशवा जाएगा उसकी डोमिनेंस आ जाएगी। कदम तलवा टिकने का मतलब है कि आपकी उस एरिया में डोमिनियन हो जाएगी, पावर आपकी काम करेगी। और जब आपके पास पावर होगी तो आप उस सिस्टम में अल्कोहल नहीं चलने देंगे, आप उस सिस्टम में चोरियां नहीं होने देंगे, आप उस सिस्टम में रेप नहीं होने देंगे, आप उस सिस्टम में एडल्ट्री नहीं होने देंगे, आप उस सिस्टम में कोई और बाइबल के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ने देंगे। आप उस सिस्टम को चेंज कर देंगे। आप उस सिस्टम में पॉवर्टी नहीं रहने देंगे, क्योंकि पावर में कौन होगा? पावर में आप होगा। और आज हम पढ़ेंगे कि जो जोर आवर है वो बादशाही को छीन लेता है। जब आपके अंदर जोर होगा तो फिर लोगों को आपके सामने झुकना पड़ेगा, और उस वक्त आप खुदा की बादशाहत को उस जगह एस्टैब्लिश कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास इख्तियार और कुदरत और पावर नहीं है, क्योंकि पौलुस हमें इफिसियों के खत उसके 6 बाब उसकी 10 आयत में कहता है कि तुम खुदा की कुदरत और खुदा के जोर में मजबूत बनो, मजबूत बनो। वो कह रहे बनो, बनना जरूरी है। सिर्फ बॉर्न अगेन होना काफी नहीं है।
बॉर्न अगेन होने के बाद अगर आप खुदा की कुदरत और जोर में मजबूत नहीं बन रहे तो आपका बॉर्न अगेन होने का फायदा सिर्फ यहीं तक है कि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन दुनिया में आपके बॉर्न अगेन होने से किसी एक बंदे को भी फायदा नहीं हुआ, इवन आपको खुद भी फायदा नहीं हुआ। जी तो आप मेरे साथ पढ़ो जी 5 आयत। ये खुदा यशवा को सारी बातें कह रहे हैं। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। आमीन। कहता है कोई भी शख्स तेरे मुकाबले के लिए खड़ा होगा वो खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद यहाँ से पढ़ो, चलो पढ़ो, आगे पढ़ो, पूरा पढ़ दो। मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा, तो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे न दाहिने हाथ मुड़ना और न बाएं, ताकि जहाँ खुदा के कलाम से देखिए उस वक्त सिर्फ शरीयत दी गई थी, उस वक्त सिर्फ क्या दी गई थी? शरीयत दी गई थी। कहता है लेकिन आज के जमाने में आप क्या कह सकते हैं, आज के जमाने में हमारे पास फुल बाइबल है, फुल गॉस्पेल है। सो हमारे पास आज के अगर आप जमाने में रखो तो आज के जमाने में कह सकते हो कि खुदा का कलाम तेरे मुंह से ना हटे और तुझे ना दाहिने हाथ मुड़ना। देखो वो कह रहा है खुदा के कलाम से ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं हाथ, लेकिन हम तो खुदा के कलाम पे खड़े ही नहीं होते, हम तो सारी जिंदगी दाहिने और बाएं हाथ ही रहते हैं। तभी तो हमारी जिंदगी में उल्टे सीधे काम होते रहते हैं, क्योंकि हम जिंदगी में लेफ्ट और राइट ही होते रहते हैं। और जब हम लेफ्ट और राइट हो रहे हैं तो हो सकता है कि कभी जिंदगी में लकीली फॉर्चुनेटली कभी राइट काम हो जाएगा तो कभी लेफ्ट काम हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा, उल्टा या सीधा, उल्टा या सीधा। कभी आपकी जिंदगी में उल्टा काम हो जाएगा, कभी आपकी जिंदगी में सीधा काम हो जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। वो ये कहता है कि इससे ना दाएं हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। जब तू कहीं जाएगा तो तुझे कितनी कामयाबी हासिल होगी? 1% नहीं, 2% नहीं, 3% नहीं, बल्कि तू खूब कामयाब होगा, कंप्लीट कामयाब। खूब कामयाब का मतलब होता है कि आपके तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी, तू तब ही सक्सेसफुल होगा। उसने यशवा को ये बिल्कुल नहीं कहा कि मूसा के पास बैठ और मूसा से टेक्निक सीख कि कौम को कैसे लीड करना है। उसने ना ही मूसा को यशवा को ये कहा कि लीडरशिप की क्लासेस ले ले, ना ही उसने यशवा को ये कहा कि तुझे पहले कोई किताब पढ़नी चाहिए ताकि तुझे पता चल सके एक कौम को कैसे लीड करना है। उसने कहा तुझे मेरे कलाम पर ध्यान देना है और बाकी काम सिखाना मेरा काम है। कहता है जब तू मेरा कलाम सुनेगा तुझे दिन रात इसका ध्यान रहेगा, तेरे दिल में भी ये होगा और तेरे मुंह में भी ये होगा और तेरी आंखों में भी ये होगा और तेरे कानों में भी ये होगा, तो क्या होगा? कहता है तू सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि तू खूब कामयाब होगा, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और मजे की बात है 3 दफा लिख रहा है यार, और कितना आपको एश्योरेंस दिया जाए। कहता है और तू खूब कामयाब होगा। बाइबल सिर्फ कामयाब भी लिख सकती थी। गौर कीजिए, अगर खुदा के कलाम में एक वर्ड भी एक्स्ट्रा लिखा है ना तो वो मीनिंग के साथ लिखा है, वो मीनिंगलेस नहीं है। हम सारा दिन मीनिंगलेस बातें करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है तो तू क्या होगा? तो तू खूब कामयाब होगा। मिसाल उसका 4 बाब, मिसाल 4 बाब। आमीन। साल उसका 4 बाब उसकी 20 आयत से का पढ़ना शुरू करें। Proverbs 4
واقعہ پڑھیں گے. جی جی ربقہ. اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے. آمین. کہتا ہے اب دیکھو یہ دیکھو غور کرو کہ کلام پر کیا کیا کرنا ہے. کہتا ہے اے میرے بیٹے، کیونکہ اب آپ مسیح یسوع کے بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں. آپ مسیح یسوع کے کیا بن چکے ہیں؟ سوری، مسیح یسوع کے خدا باپ کے کیا بن چکے ہیں؟ بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے بڑے بھائیوں کی بھی بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں. اگر میں نے کہہ دیا تو اٹس اوکے. کہتے ہیں اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر. آپ نے کس کی باتوں پہ توجہ کرنا ہے؟ خدا کے کلام میں جو لکھا ہے اس پہ توجہ کرنا ہے، نہ کہ جو آپ کو ٹیلی ویژن، نہ کہ جو آپ کو یوٹیوب، نہ کہ جو آپ کو انسٹاگرام، نہ کہ جو آپ کو رشتے دار، نہ کہ جو آپ کو کوئی اور شخص جو آپ کی زندگی میں اتھارٹی لگتا ہے وہ آپ کو بتائے. کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر. پہلا کام، آپ کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ خدا کے کلام پر. نمبر 2، میرے کلام پر کان لگا. آپ کے کان بھی کس کی طرف لگے ہونے چاہیے؟ خدا کے کلام کی طرف. پھر کہتا ہے اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہو، یعنی کہ آپ کا جو نظروں کا فوکس ہے وہ بھی کس پہ رہنا چاہیے؟ خدا کے کلام پر. میں نے لاسٹ آپ کسی شخص کی رائے پر بھی فوکس رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کا ڈیوائیڈڈ فوکس ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ آپ گریں گے. پترس کیوں گرا؟ کیونکہ ایک وقت میں وہ یسوع کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ تیز ہواؤں کو اور اس سمندر میں جو طوفان آیا، اس جھیل میں جو طوفان آیا اس پر بھی فوکس کر رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ڈوبنے لگتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح اس کو بچا لیتا ہے. سو آپ کا فوکس کس پہ ہے یہ میٹر کرتا ہے. کہتا ہے میری باتوں پہ توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ. دل میں بھی رکھنا ہے. پتا چلے میں آپ کے گھر آؤں اور ہر جگہ ورسز لکھی ہوں لیکن دل میں نہ ہو تو وہ دیوار پہ رہ جائیں گی. دیوار پہ ورسز لکھنا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ کلام بھی تو آپ کی دیواروں پہ ہی پڑا رہتا ہے، آپ کی شیلف پہ پڑا رہتا ہے. آپ کلام کی ڈسٹنگ روز کرتے ہیں لیکن اپنی ڈسٹنگ نہیں کرتے، اپنے دل کو صاف نہیں کرتے. کہتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو ورڈ کو پا لیتے ہیں، جس کی ریولیشن کو پا لیتے ہیں، جس کے مکاشفے کو پا لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات، یہ آپ کو کیا دے گا؟ لائف دے گا. آج آپ اس بات کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں کہ آپ کی عمر نکل گئی اور آپ کو رائٹ پارٹنر نہیں ملا. آج آپ اس بات کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں کہ آپ کی عمر نکل گئی اور آپ کا ابھی تک کریئر سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا. آپ آج شاید اس بات سے پریشان ہو سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آج آپ شاید اس بات کے لیے پریشان ہو سکتے ہیں کہ آپ کا فیوچر کہیں کا بھی نہیں ہے. شاید آپ اس بات سے پریشان ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کو ڈیزیز ہو چکا ہے اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے، یا آپ کے فائنینسز نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کا خدا کے کلام پر دن رات دھیان ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو نہ صرف لائف ملے گی بلکہ ابنڈنٹلی ملے گی. کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے چور آتے ہیں چرانے، مار ڈالنے، ہلاک کرنے کو، لیکن میں کس لیے آیا ہوں؟ کہ تم زندگی پاؤ. اور کتنی زندگی پاؤ؟ کثرت کی زندگی پاؤ. تھوڑی زندگی نہ پاؤ، کثرت کی زندگی پاؤ. اتنی زندگی پاؤ کہ تمہاری زندگی کو دیکھ کر لوگ تمہاری طرح زندگی گزارنا چاہیں. اتنی زندگی پاؤ. اور اس کے بعد کہہ دیتا ہے کہ سارے جسم کیوں اور حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے. جیسے آپ ورڈ پہ میڈیٹیٹ کریں گے آپ کو صحت ملنے لگ جائے گی. مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کو کس قسم کی صحت کی ضرورت ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے نہیں ہیں لیکن پھر گواہی کے ساتھ آتے ہیں میم جی ہم نے آپ کا فلانا سرمن سنا اور ہمیں شفا مل گئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 11 باب اور اس کی 12. جی مس ریبیکا پڑھ دیں. اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں. کہہ رہا ہے آسمان کی بادشاہی کون چھین لیتے ہیں؟ زوراور. آپ بھی آسمان کو زمین پر لا سکتے ہیں اگر آپ زوراور ہیں. آپ آسمان پر خدا کی جو مرضی پوری ہو رہی ہے آپ اس کو زمین پر پورا کر سکتے ہیں اگر آپ زوراور ہیں. لیکن کس میں زوراور ہونا ہے؟ اس 6 باب اس کی 10 آیت خداوند کی قدرت اور خداوند کی قوت میں زوراور ہونا ہے. اپنی قدرت اور اپنی قوت میں زوراور نہیں ہونا. کیونکہ یوحنا کہتے ہیں
तू बढ़ता जा और मैं कम होता हूँ। खुदा को अपनी जिंदगी में बढ़ने दे। खुदा कैसे आपकी जिंदगी में बढ़ेगा? जब आपका ध्यान दिन रात खुदा के कलाम पर रहेगा। फिर आप कितना कामयाब होंगे? खूब कामयाब होंगे। थोड़ा कामयाब नहीं होंगे, खूब कामयाब होंगे। कि आपकी कामयाबी लोग सुनकर आएंगे। जैसे सुलेमान की हिकमत सुन के मलका भी उठाई उसकी हिकमत का टेस्ट लेने, उस तरह आपकी कामयाबी देखकर लोग बड़े बड़े 80 साल के रेवरेंड भी उठ के आपसे कलाम सीखने आएंगे। और इस तरह खुदा की बादशाहत का कलाम हर घर में फैलेगा और हम इस मिशन को पूरा करेंगे कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम फैलाएंगे। मेरे साथ निकाले एक और वर्स, मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 16 बाब और उसकी 18। मत्ती उसका 16 बाब और उसकी 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। अब गौर कीजिए, वो पतरस को कह रहा है कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। अच्छा, लोग क्या समझते हैं? लोग समझते हैं कलीसिया का हेड सेंट पीटर, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। वो यीशु मसीह की बात करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है सॉरी मेरे मुज़क्कर मोनस ही गलत हो गया। बाइबल कहती है कि सयून में हम कोने का सिरे का पत्थर रखता हूँ, कीमती पत्थर रखता हूँ, जिससे लोग ठोकर खाएंगे। लोगों ने पत्थर से ठोकर नहीं खाई थी, यहूदियों ने यीशु मसीह से ठोकर खाई थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो पत्थर यीशु मसीह था। बहुत सारी मिशंस इस बात को फॉलो करती हैं कि पतरस सारी जो मिशंस हैं उनका हेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पतरस ने पहली कलीसिया को शुरू किया, लेकिन पतरस कलीसिया का हेड पत्थर या वो स्टोन नहीं है। वो यीशु मसीह की बात करें, वो रॉक यीशु मसीह था। जब मूसा ने पत्थर पर अपनी लाठी मारी, में डंडा कहने लगी थी, लाठी मारी तो क्या हुआ? वो जो रॉक था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और जब वो डिवाइड होता है तो उसमें से पानी निकलता है। और अगर आपको याद हो तो यीशु मसीह जब सलीब पर है तो उसकी पसली पर भाला मारा जाता है और वहां से खून और पानी निकलता है। वो पत्थर भी यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पत्थर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यीशु मसीह को। सो पत्थर तो, बाइबल का पत्थर तो शुरू से यीशु मसीह है, वो पतरस नहीं है। कैसा है? जो कोई उस पत्थर पे अपना फाउंडेशन रख रहे, जो हम घर बनाते हैं तो हम उसकी बुनियाद को सबसे मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अगर उसकी बुनियाद मजबूत है तो पूरा घर स्टेबल रहेगा। आप ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक तमसील में कहा था कि एक समझदार शख्स है और एक बेवकूफ शख्स है। बेवकूफ शख्स अपना घर रेत पे बनाता है और बेवकूफ करता है अपने घर को रेत पे बनाता है। और जब वो रेत पे बनाता है तो क्या होता है? बारिश आती है और नीचे से रेत निकल जाती है, और घर जो ऊपर भले कितना अच्छा घर क्यों ना हो, वो घर डूब जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि उस घर की फाउंडेशंस ठीक नहीं थी। इसी तरह वो यीशु मसीह तमसील में कहता है, लेकिन एक शख्स है जो अपना घर एक चट्टान पर बनाता है। तो क्या होता है? क्योंकि चट्टान मजबूत है, बारिश आती है, आंधी आती है, तूफान आती है और वो चट्टान नहीं हिल पाता, वो चट्टान नहीं मूव कर सकती। तो जब चट्टान नहीं मूव करती तो वो घर भी स्टे कर ही रहता है। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर तुम उसी रॉक पर जो यीशु मसीह है उस पर अपनी फाउंडेशंस बनाते हो तो क्या होगा? इवन शैतान का कोई भी हथियार तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सका। कहता है आलम अरवाह के, रिबेका पढ़े जरा। और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। कहता है आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे, और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। लेकिन ये आसमान पर जो खोलेगा और बंधेगा, जो भी करेगा, उससे पहले वो कह रहा है कि फाउंडेशंस मजबूत होने चाहिए।
آپ मसीह यीशु में कौन है, आपकी फाउंडेशन इस पे बेस करनी चाहिए। आपको पता है मेरा फेवरेट टॉपिक सल्वेशन। क्यों मेरा फेवरेट टॉपिक सल्वेशन है? क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर आपकी बुनियाद मजबूत रख दी गई, तो मैं आपके ऊपर हूं या ना हूं, आप उस बुनियाद, क्योंकि बुनियाद आपकी मजबूत है, मेरा होना या ना होना, मेरा आपके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बन के चलना फिरना, ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर जो भरा हुआ है आपने वही निकालना है। जो आपकी जड़ है आप वही फल देंगे। कोई भी जड़, कोई भी फल खुद से नहीं निकल सकता जब तक उसकी जड़ वही जड़ ना हो। और अगर आपकी जड़ मजबूत है तो आपको उखेड़ने में भी टाइम लगेगा। जिन दरख्तों की जड़ें मजबूत होती हैं, हवाएं, आंधियां, तूफान है, वो दरख्त नहीं गिरते। लेकिन अगर जड़ें मजबूत नहीं है तो वो तेज आंधी से दरख्त भी गिर जाते हैं, दरख्त भी गिर जाते हैं। तो वो कहता है जिसकी चट्टान, जिसका जोर, जिसकी फाउंडेशन यीशु मसीह पर बनी है, उस पर शैतान का कोई भी हथियार काम नहीं कर सकता। क्योंकि आलमी रवा का कंट्रोल किसके पास था? शैतान के पास था। लेकिन बाद में यीशु मसीह वो कुंजियां ले लेता है, कहता है आलमी रवा की कुंजियां किसके पास हैं? अब सारा कंट्रोल किसके पास है? यीशु के पास है। तो जब कंट्रोल यीशु के पास है और आप यीशु मसीह में डेवलप करें और आप यीशु मसीह में बढ़े, तो सारा कंट्रोल भी आपके पास है। कहते हैं जब तुम इस पावर में चल रहे हो, तुम इस पावर में मूव करे, तो क्या होगा? जो कुछ तुम इस जमीन पर बांधोगे वो आसमान तक बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम इस जमीन पर खोलोगे वो आसमान तक खोला जाएगा। पावर पीछे से आ रही है, पावर यहाँ से नहीं आ रही कि आपने जो कुछ आप बांध दिया और जो कुछ आप खोल दिया। इस तरह तो दुनिया में हर कोई ऐसा कर दे। कहता है जिसकी फाउंडेशन यीशु मसीह है, सिर्फ उस शख्स के पास ये इख्तियार है। उस शख्स के पास हेवन के डोर्स की कीज है, और वो कीज काम करेंगी, क्योंकि वो की किससे काम करती है? फेथ से काम करती है। आज का लास्ट रेफरेंस नहीं है, बल्कि सेकंड 9 वर्स 26, 27, 28 और 29 हम पढ़ेंगे। जी रिबेका, सॉरी मैम 26 से। हाँ जी। और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदा। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। आमीन। ठीक है, कहता है तुम्हारे लिए किसके मुताबिक हो? तुम्हारे लिए मेरे लव के मुताबिक हो। गलत कॉन्सेप्ट है ये। आप समझते हैं अगर खुदा हमसे मोहब्बत करता है तो वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर खुदा हमारी सुनता होता तो वो हमारे लिए सब कुछ कर देता। अगर हम खुदा की सही इबादत करते होते तो हमारे लिए सब कुछ होता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने तो ये स्टैंडर्ड रखा ही नहीं। ये तो आपका स्टैंडर्ड है, ये तो आपके कलीसिया ने स्टैंडर्ड बनाया है। मुझे आके कोई ये ना बताए कि आपका चर्च क्या कहता है। अगर आपका चर्च वो कहता है जो कलाम में नहीं लिखा, तो मैं आपके चर्च को नहीं मानती। हाँ, अगर आपका चर्च वो नहीं मानता जो कलाम में लिखा है, तो आपको अपने चर्च को करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए चर्च से ज्यादा खुदा का कलाम जरूरी है। और कलाम के लिए खड़े होना सीखें, क्योंकि वो कहता है कि अगर जान देने तक वफादार हो। क्या यीशु से क्या वफा करनी है? उसके राइट कलाम के लिए खड़े होना है, और जो उसने आपके लिए कुर्बानी की उसके लिए स्टैंड लेना है। ये वफादारी है। कहता है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और वो ताज सिर्फ आसमान पे जाके नहीं मिलना, बल्कि कहाँ मिलना है? जमीन पर 100 गुना फल की सूरत में। तो यहाँ पर मुझे आपको कबूल करने में प्रॉब्लम है। वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहता कि तुम्हारे लिए तुम्हारे एतकाद के मुताबिक हो। उसने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए तुम्हारे दुआओं के मुताबिक हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी शुक्रगुजारियों के मुताबिक हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे रोजों के मुताबिक हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चर्च के मुताबिक हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी चर्च में कितनी पार्टिसिपेशन है उसके मुताबिक हो।
ان ساری چیزوں کو یسوع مسیح نے کبھی کنسیڈر نہیں کیا.